यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड मूवी अल्फा 3 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। इसी बीच आलिया भट्ट फिल्म का जोरों शोरों से प्रमोशन कर रही हैं। आलिया हाल ही में अल्फा को प्रमोट करने पुणे पहुंची। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने को स्टार्स बॉबी देओल और अनिल कपूर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस साझा किया। साथ ही दोनों को लेकर दिलचस्प खुलासे भी किए। I have to say I had the best time working with Bobby sir, even with Anil sir. They're both so different and such, and bring so much to the table. With Bobby sir and I think we were just, he doesn't come across who itne, large hai, almost like this big giant. But he comes across, he's so gentle, quite opposite to his stature. But he brings so much to the table and he brings so much to the camera. उनको खुद पता नहीं है कि वो क्या जादू कर जाते हैं। तो अगर उन्होंने अच्छा टेक भी लिया और शिव हमारे डायरेक्टर के बोलते बॉबी सर आउटस्टैंडिंग 10 on 10 नो नोट्स, ये बोला मैंने क्या किया, अच्छा तो फिर से करना है। तो he be very nervous क्योंकि he can't repeat it again because he just did something which he didn't know how he did it, but it still just worked like magic. And I think that's one of the best things about him is he doesn't know how wonderful he is and how well his eyes translate onto the camera. तो हमें तो बहुत मजा आया. We had quite a lot of action also to do together. I know वो काफी moments पे डर रहे थे क्योंकि he's like I don't want to accidentally hurt you in any way. But no, I think all of that went off really well. But अब फिल्म में भी देखोगे कि क्या क्या किया था हमने साथ में. And with Anil sir, I think शर्करी और मैं हमेशा डिस्कस करते हैं कि अनिल सर में जितनी एनर्जी में है वो किसी में भी नहीं है। मतलब आप पूरा रूम इकट्ठा कर लोगे फिर भी उनका एनर्जी उन सबसे ज्यादा होगा। How he would walk on to set 7 o'clock in the morning, he would be walking on to same way 7 PM. अल्फा की बात करें तो ये फिल्म पहले 10 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी। हालांकि अब ये 3 जुलाई को ही अपने थिएट्रिकल रिलीज के लिए रेडी है। मूवी में आलिया के अलावा शर्वरी वाघ भी अल्फा एजेंट के कैरेक्टर में हैं और अनिल कपूर के साथ साथ बॉबी देओल भी दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। Bollywood's beloved star Kajol has recently delighted fans as she refreshed her social media handle with a gorgeous new post showcasing the charm and beauty that never fades. The actress on Tuesday evening took to her social media platform and posted a bunch of pictures and wrote in the caption, "Those who like my posts are happier, more intelligent and better looking than those who don't, according to a study I made up." In the posted series, the actress was seen posing in a vehicle radiating elegance in a traditional sari, with a escaping embroidered blouse and a stunning choker necklace with hanging pearl drops. While the first photo captures her radiant smile, the remaining two highlighted a poised and serene expression showcasing a glamorous smoky eye makeup and voluminous side-parted wavy hairs. By sharing such graceful pictures, she reminded everyone why she continues to be one of those timeless actresses cherished by fans and audience alike. On the professional work front, the actress made her acting debut at the age of 17 with the romantic drama film Bekhudi in the year 1992. Her next upcoming project includes the action thriller Maharagini, Queen of Queens. Off-screen, Kajol is happily married to Bollywood star Ajay Devgan. Their love story began on the sets of Halchal in the year 1995, and after dating for 4 years, they tied knot in the year 1999. Today, the couple are proud parents of Naisa and Yug Devgan. कृति सैनन ने अपनी हालिया रिलीज फिल्म कॉकटेल 2 के लिए लाइमलाइट बटोरी। अब एक्ट्रेस अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हैं। इसी बीच कृति ने हाफ ईयरली डम शेयर कर फैंस को फैसिनेट किया है कि हैक्टिक वर्क के बाद भी पर्सनल लाइफ को बखूबी बैलेंस किया जा सकता है। काम के बाद भी कृति को सेल्फ लव पर पूरा ध्यान देते देखा गया है। हाफ ईयरली डंप को शेयर करने के लिए कृति ने इंस्टाग्राम का सहारा लिया। पिक्चर्स की इस सीरीज में कृति कभी शूज डेट पर तो कभी सेल्फ लव पर फोकस करती देखी गयी। एक्ट्रेस ने इसमें कॉकटेल 2 की को स्टार रश्मिका मंदाना के साथ की मेमोरी के अलावा अपनी सिस्टर नूपुर के साथ पहाड़ ट्रिप की भी झलक दी है। इतना ही नहीं, वो कभी अपने पेट के साथ खेलती
तो कभी जिम में वर्कआउट करती नजर आई हैं। कृति ने अपने ग्लैम लुक के साथ साथ अपने नो मेकअप लुक की भी झलक दी है। पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, हाफ ईयरली डम्प, some moments that never made it to the gram and some never will। कृति सैनन ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री का रुख किया और आखिरकार 2014 की फिल्म हीरोपंती से शानदार बॉलीवुड डेब्यू किया। इतना ही नहीं, 2021 की मूवी मिमी में सैरोगेट मदर का कैरेक्टर प्ले कर उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किया। वर्क फ्रंट की बात करें तो कृति सैनन फिल्म नो एंट्री के सीक्वल नो एंट्री 2 में नजर आएंगी। आ रही है, उसका नाम है बेबी डू डाई डू। 3 जुलाई को आ रही है, थिएटर्स में आ रही है आपके नजदीकी, तो प्लीज जाके देखिए। ये हमारे डायरेक्टर हैं नचिकेत सर। क्या किरदार निभाया आपने? मैं एक डेफ और म्यूट लड़की का किरदार प्ले कर रही हूँ, जो कि एक हिट वुमन है। वो सुपारी लेके लोगों को मारती है और उसकी गन जो है उसकी लाल छाते में है। आपके साथ में कौन कौन हीरो? मेरे साथ इसमें बहुत प्यारे बहुत कमाल के एक्टर्स हैं। चंकी पांडे हैं, सीमा पावा है, सिकंदर खेर है, मरुधर सिंह शेखावत है और रचित सिंह है। दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं कि प्लीज जाके हमारी फिल्म देखिए। बहुत ही प्यारी फिल्म है, इंडिपेंडेंटली मेड है। हमें 4 साल लग गए इस पिक्चर बनाने के लिए और हम इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। बहुत छोटी फिल्म है मगर हमारा दिल बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि ऑडियंस का दिल भी हमारे साथ लग जाए। सबसे पहले तो वेलकम टू आईएनएस। सर सबसे पहले आपसे जानेंगे कि बॉलीवुड का पहला आधा साल खत्म हो चुका है। आप 6 मंथ्स के रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं? ओवरऑल इंडस्ट्री पास हुई है या अभी भी स्ट्रगल कर रही है? बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। ओटीटी आने के बाद तो हमारी और बुरी हालत हो गई। ये बोलते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आती क्योंकि मेरे यहाँ पे 7 थिएटर है, G7 मल्टीप्लेक्स है और मराठा मंदिर में सब कुछ होते थे। भगवान की दया से DDLJ आज 30 साल से चला रहा हूँ मैं, क्योंकि वी हैव वेरी रिजनेबल रेट एंड माई मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण नाहर ऑल्सो बिलीव इंस्टेड ऑफ कीपिंग empty house you should reduce the rate and you see that public should come। और मेरा थिएटर भी ऐसी जगह पे है कि सामने मुंबई सेंट्रल स्टेशन है। जो बाहर गाँव से आते हैं वो हमारे वहाँ पहले DDLJ देख लेते हैं, गरम गरम समोसे खा लेते हैं और फिर चले जाते हैं उनका जो डेस्टिनेशन है। उसी तरह स्टेट ट्रांसपोर्ट बिल्कुल रिजर्व बैंक के बाजू में, तो सारे महाराष्ट्र में जितनी बसें वो सब वहीं रुकती है। वो लोग भी यही करते हैं, आते हैं हमारे वहाँ, एंजॉय करते हैं पिक्चर को। और यही वजह से पिक्चर इतने सालों से चल रही है। बात आई घूम फिर के तो आजकल वो पिक्चरों का ज़माना गया जो DDLJ में था। अब जो पिक्चरें आती हैं वो पिक्चर किस ढंग से बनता है, क्यों ऐसे बनाते हैं, आई डोंट नो। कि जो पिक्चर चलती नहीं है, अगर वो एक वीक चल गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो स्टुपिडिटी है। और सामने इतना बड़ा कंपटीशन OTT का आ गया है, तो कम से कम पिक्चर इस ढंग की बनाओ। अक्षय कुमार जी की ये जंगल इतना बड़ी पिक्चर, इतने अच्छे स्टारकास्ट कुडंट सस्टेन। तो ये सब ठीक नहीं हो रहा है। तो रिसेंट बॉक्स ऑफिस ट्रेंड में कुछ बड़ी हिंदी फिल्में ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे बॉर्डर 2 है और ये वेलकम टू द जंगल भी लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मतलब कि और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तो देख ले आने थे बिगिनिंग में, तो फर्स्ट वीक तो बहुत अच्छा गया है। अभी हमें तकलीफ ये सेकंड वीक से होगा, ये पक्की बात है। सर जबकि स्टार ड्रिवन प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड लेवल तक पहुंच नहीं पाई थे, तो आपके हिसाब से इस साल सबसे बड़ा सरप्राइज कौन सा रहा और क्यों? फिल्म की बात की जाए तो इस साल कौन सी फिल्म में आपको लग रहा था कि वो चल नहीं पाएंगी पर बहुत अच्छा परफॉर्म की है? आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए? फिर मैं मेरा बताऊँगा। मेरे हिसाब से वेलकम टू द जंगल है, जो इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी इतनी अच्छी परफॉर्म करेगी। इतने आर्टिस्ट होने के बाद भी अगर मुझे हाउसफुल नहीं मिलता है तो मुझे तो दुख होगा ना। तो वही सिचुएशन अभी चल रही है। और दूसरी कौन सी पिक्चर बोलिए?
दूसरी फिल्म में जो याद नहीं आ रही कि एक उसके बहुत अच्छी गई थी महेश भट्ट की बेटी। हॉन्टेड हॉन्टेड हंटेड नहीं, मैं झूठी बात करता हूँ, वो जिसमें गरबा खेलती है, बहुत गंगूबाई काठियावाड़ी। शी इज़ डायरेक्टर वेरी गुड जॉब, शी इज़ डन ऑल्सो वेरी नाइस। तो ऐसी कोई पिक्चर है जो अपना लैंडमार्क छोड़ जाके जाती। और कई पिक्चर में इतने स्टार होने के बाद भी, पहले तो क्या 2 स्टार पे भी कमाल करती थी। राजेश खन्ना की 500 पिक्चर देखो, एक से एक चढ़ के। क्या आपको लगता है कि ऑडियंस के साथ स्टार पावर अट्रैक्ट करती है या स्ट्रॉन्ग कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आज की तारीख में? कंटेंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। और दूसरा म्यूज़िक। एक ज़माना था, मैं तो खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं प्रोड्यूसर ऑफ खुदा गवाह, शूटेड टोटली इन अफगानिस्तान में। आनंद बख्शी लिरिक थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का वो था म्यूज़िक। और मैंने जो गाने दिए हैं मुझे मालूम है, मैं जो हालत से वहाँ टैंक के ऊपर WB राव में हमारा कैमरामैन टैंक के ऊपर वो रखता था अपना कैमरा, और उसकी वजह थी वहाँ वॉर चल रहा था। ये तो क्या हुआ कि हमारे स्वर्गवासी राजीव गांधी और नजीबुल्लाह साहब बहुत अच्छे दोस्त थे, वहाँ के प्रेसिडेंट। तो उन्होंने आगे 4 टैंक, पीछे 4 टैंक और बीच में हमारा यूनिट चलता था। इतना प्रिकॉशन हमें दिया था। तो वी हैव डन। ऑफ कोर्स बहुत टेंशन था, क्योंकि हर एक जगह से बहुत हमें वार्निंग आई थी। डैनी के घर से वार्निंग आई थी, उनकी वाइफ तो प्रिंसेस है सिक्किम की। उन्होंने कहा था कि इनको कुछ हुआ तो मनोज भाई यहाँ आना नहीं। वही हालत श्रीदेवी जी की मदर ने बोला था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर श्रीदेवी को कुछ हुआ तो। बाकी रह गया। तो तेजी बच्चन जी घर पे बुलाया, जया भाभी ने घर पे बुलाया, बोले ये मुन्ना की अमित जी की जीत है इसलिए तुम जा रहे हो उधर, लेकिन अमित को कुछ हुआ तो आना नहीं। अगर मेरी वाइफ मेरी बहू यानी जया बच्चन वाइट पहनेगी तो तुम्हारी वाइफ कल्पना वो भी वाइट पहनेगी, तुम भी वहाँ मर के आना, यहाँ जिंदा नहीं आना। ये हालत में मैं पूरे यूनिट को ले गया था। कैसे कैसे हम लोग ने किया हमको मालूम नहीं। नजीबुल्लाह साहब भी कभी कभी आवाज़ आता था डगा, तो पूछते थे अभी जी ये क्या आवाज़ है? नहीं हमारे वहाँ शादी है, उस शादी के अंदर गोली वोली चलती है। कोई शादी नहीं थी, वॉर चल रहा था, लेकिन हम डर ना जाए इसलिए। तो पहले हाफ में, इस साल के पहले हाफ में ऐसी कौन सी फिल्म है जिनको बॉक्स ऑफिस नंबर आपको पर्सनली सरप्राइज कर दिया है? ऐसी कौन सी फिल्म है ये पहले 6 महीने में आप देखते हैं कि मतलब आपको लग रहा था कि ये फिल्में चलेंगी नहीं, बट जो है मैं पिक्चर भूल जाता हूँ क्योंकि चलती नहीं है। आप मुझे थोड़ा बताएंगे 6 महीने में कौन सा आपने सोचा है? मैं फिर इमीडिएट जवाब दूँगा। तो बॉर्डर 2 है, चली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जी। और फिर उसके बाद ये वरुण धवन की आई है जब तो इश्क होना है। उसी ज़्यादातर मेरे वहीं प्रमोशन होते हैं, आपको तो मालूम है। माधुरी दीक्षित का प्रमोशन भी पीछे कार पार्किंग में हुआ था। वरुण धवन ऊपर चढ़ गया था यहाँ पे, और यहाँ पे तो यहाँ सब ये सब होते रहता है। दिस इज़ द थिएटर, क्योंकि 7 थिएटर है, उतनी पब्लिक बाहर होती है उतनी पब्लिक अंदर है, तो यहाँ बड़ा धुरंधर द रिवेंज भी आई हुई थी। हाँ जी, धुरंधर द रिवेंज बहुत ज़बरदस्त, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिक्चर थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुछ जो अपनी वाइफ के साथ या अपनी फियांसी के साथ आए थे, तो इतना क्रूअल था कि वो लोग छोड़ देते थे। इट वॉज़ अ वेरी क्रूअल फिल्म। हालांकि मैं अभी तक उसमें से आधा पार्ट देखा हूँ। वो टीवी पे कौन से में किस पे आ रहा है? धुरंधर। हाँ, नेटफ्लिक्स पे। हाँ, वो आधा देखा है, बाकी देखा भी नहीं है। वो टाइम मिलता नहीं, क्योंकि अभी क्या है, एक दिन गेडी गैलेक्सी, दूसरी दिन बराड़ा मंदिर, वापस गेडी गैलेक्सी, वापस बराड़ा मंदिर, वापस गेडी गैलेक्सी, चलते रहता है। और इसके बाद
आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आई थी, वो भी नहीं चल पाई सर, जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं। सर- पति पत्नी और वो दो सर। सर ऐसा है, जी। स्टोरी होनी चाहिए ना सर। स्टोरी होने के बाद आपको वो एक्टिंग करनी चाहिए। पति पति वो तीन तीन बीवी रखते हो तो है ताकत तुम्हारे में तीन बीवियों के साथ एक्टिंग करने की? सेम एक्टिंग नहीं चलती है, तीन बीवी हो ना, अलग अलग एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं उसकी विरुद्ध नहीं हूँ, वो स्टार के विरुद्ध नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस, लोग कैसे आधा आधा पिक्चर छोड़ के चले जाते हैं। सर क्या बॉलीवुड अब फाइनली पोस्ट पैंडेमिक फेज से बाहर निकल रहा है, या थिएटर को अभी भी ऑडियंस वापस लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और साउथ की पिक्चर, मजे की बात है, दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग भी, साउथ की पिक्चर यहाँ बहुत ज़बरदस्त जाती है। वो फिर किसका भी हो, अपने वहाँ श्रेयस कौन है, प्रभास सर। प्रभास, वो सबका ज़बरदस्त चलती है। सर, हालांकि वो यहीं, वो मद्रास से यहाँ आते हैं इंटरव्यू देने को। दे सिट इन माई रूम, दे गो आउट, पब्लिक के बीच में वेव करते हैं। तो ये सब चीज़ हो रही है। सर एक्शन कॉमेडी की, पैट्रियोटिक और हॉरर जैसे जॉनर्स में कौन सा जॉनर है जो आपको लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा काम कर रहा है? सर पहली बात तो पहले जैसी हॉरर आ नहीं रही अभी। पहले जो हॉरर आती थी ना, उसमें हकीकत में आदमी हिल जाता था। अभी नहीं है। वो महमूद की पिक्चर हो या कोई और पिक्चर हो, कहीं दीप कहीं दिल जले हो, वो सब पिक्चर आई, अच्छे अच्छे गाने आए। अब नहीं है वो स्पिरिट नहीं रहा अभी, अच्छे अच्छे गाने का टाइम नहीं रहा अभी। आप बताइए राजेश खन्ना की, अमित जी की कौन सी पिक्चर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाने नहीं थे? मुकद्दर का सिकंदर देख लीजिए, वो मेरा हीरो थे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने थिएटर 1972 से चला रहा हूँ सर। आज क्या है 2026 ना, कितना गिनूँ? मुश्किल सर ज़्यादा सर 72 पहला सीता और गीता सा फर्स्ट पिक्चर हमारे पास, 72 और आज 2026। 28 plus 26 almost 50 to 54 years. सर एक ही जगह पे हो, और बाकी सबको भी संभाला है। जैसे सन सिटी से मैंने बनाया, क्योंकि बरजोर मिस्त्री मेरे साउंड एकोस्टिकल आदमी थे, तो मुझे बोला वहाँ क्या हो, वहाँ सब स्पीकर्स लगाए, सब किए, बहुत कुछ, बहुत सारे। मैंने वर्ली में सत्यम शिवम सुदम था, वर्ली में, वो भी मैंने पूरा लगाया। कई थिएटर मैंने बनाए हैं। यूसुफ लखरावाला का सन सिटी यहाँ पे ईस्ट में, वो भी मैंने बनाया। मैं करता था सब कुछ, लेकिन एक पैसा किससे लेता नहीं था। अभी तक काम कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन पहले जो पिक्चरें आती थी, पहले पिक्चर के अंदर जो म्यूज़िक आता था, जो गाने आते थे, वो नहीं आ रहे हैं। ये अफसोस की बात है। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं मल्टी स्टारर का जो मतलब कि एक दौर आ गया वापस से? जैसे पहले हम देखते थे मल्टी स्टारर फिल्में बनती थी, अभी भी हम देख रहे हैं कि धुरंधर हुई, बॉर्डर 2 हुई, अभी ये वेलकम टू दी जंगल हुई। मल्टी स्टार का दौर आपको लग रहा है वापस आ गया है कि? आया है, लेकिन करना चाहिए। आ गया हो, दौर आया है वापस। वही मल्टी स्टार का स्टार हैदराबाद में चलता है ज़बरदस्त। क्यों? वहाँ पब्लिक को एक साथ 8 भी थिएटर है, बाजू में, सबके सब फुल। यहाँ नहीं, क्यों? OTT पे देखेंगे ना, कौन सी जल्दी जाना है? जाएंगे तो खर्चा होगा, बच्चों को साथ में ले जाएंगे तो उनको कुल्फी पिलाना पड़ेगा, ऊपर से सब खरीदना पड़ेगा कैंटीन से। ये सब कैलकुलेशन होता है। तब क्या घर में OTT में बैठे बैठे वाइफ को बोल सकते एक कप चाय मिल जाएगी, साथ में 2 बिस्कुट मिल देते हैं, सामने बैठ के देखो। तुम्हारा AC चालू करते हो तुम्हारा बेडरूम का। ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे माहौल चेंज हो रहा है। सर आज के दौर में आपको लगता है रोमांटिक फिल्म जो जैसे पहले बनती थी रोमांटिक फिल्म है वो नहीं बन रही है,
तो आपको क्या लगता है कि अमर प्रभ क्यों देखो। impact नहीं बना पा रही है? आज ये आप इसका राजेश खन्ना का एक दौर था जब राम राम राज राज हाँ उनका जब मौत हो गया था, लाश पड़ी थी, मैं और अमित जी आगे बंगले के आगे की वहाँ बैठे हुए थे। बोले लोग मनोज खून से लेटर लिखते थे ये आदमी, वो अभी ख़त्म नहीं। जहाँ सांस बंद हुई वहाँ सब कुछ ख़त्म। आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, हम दोनों उसको रिस्पेक्ट करने गए हैं। हमारे में से आप में अमित जी, मेरे में ताकत है उसकी लाश के पास जाने की? नहीं नहीं मनोज, इतने बड़े एक्टर के मैंने कितनी पिक्चर उसके साथ की, आई कुडंट बेड हिम, सोया हो उसको देखते। तो बोलने की बात यह है कि एक इंसान का कितना बड़ा वजूद था उस वक्त, कैसा म्यूजिक था। जब भी दिल लगा देते हैं, एक नया शर्मिला ठाकुर के साथ उसकी एक, सब गाने एक से एक हिट है। वो नहीं होता सर, अभी नहीं हो रहा है। आज के गाने में लोग उठ के बाहर। सर आपके हिसाब से सेकेंड हाफ में बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्में होंगी? क्योंकि अभी किंग आने वाली है, KGF चैप्टर 2 आने वाली है, और फिर कई सारी फिल्में और आने वाली है। और सेकंड हाफ शुड बी स्टॉप इन व्हाट वे? ऐसे ही चलाते हो नहीं, सेकंड हाफ विल बी बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि वो देख के पब्लिक जब बाहर निकले तब वो पिक्चर की इम्प्रेशन लेके बाहर निकलेंगे। वो बाहर निकलते निकलते कि मैंने कई पब्लिकों को मेरे थिएटर में देखा है, 3 राजकुमार अलग अलग जगह से निकल देता है। ऐसे ऐसे पिक्चर तीन राजकुमार, एक यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, क्या नहीं चलता ये। अब की जो जनरेशन है, खास करके यंग, दे आर वेरी स्मार्ट। मुझे आके जो जानने वाले हैं वो मुझे आके पूछते हैं, मनोज अंकल ये रवीना टंडन जब लिफ्ट से जा रही थी ऊपर तब उसके पास दूसरा पर्स था, वो जब नीचे आ रही है तब उसके पास दूसरा पर्स है, उसने पर्स कहाँ बदली किया? अब मैं क्या जवाब दूँ उसका? मैं उनको बर्दाश्त करता था और मैं उनको ये बोलता था, बेटा ये फैशन है आजकल, सब कुछ चेंज करते रहते। ऐसे कैसे प्रेजेंट जो दिमाग में ना उठे, कोई जवाब नहीं होता था, मैं ऐसे ही एक्सक्यूज निकाल लेता था। क्या करें, क्योंकि हमारी वो जेंट्री है, वो पब्लिक आती है, पब्लिक के साथ मगजमारी करूँगा, वो आना बंद करेंगे हमारे वहाँ। इसलिए देखिए हमारा रेट भी एकदम रिजनेबल है, यहाँ का भी, मराठा मंदिर का रिजनेबल रेट। मैं ये खास बोलता हूँ, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर जो अरुण नाहा बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ कीपिंग एम्प्टी थिएटर, कीप लेस रेट एंड लेट देम एंजॉय। सर लास्ट ईयर में जाएंगे सर, KGF चैप्टर 2 भी आने वाली है सर, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? और किंग भी आने वाली है शाहरुख खान की, तो आपको क्या लगता है कि लोग वापस थिएटर में आएंगे कि क्या? आने तो चाहिए, यश भी वहाँ पावरफुल है, यहाँ शाहरुख जी बड़े पावरफुल है, लेकिन जो भी है, सलमान एक ज़माना था हर बकरी ईद और दूसरी ईद पे उसकी नई पिक्चर आती ही थी, आजकल नहीं है। सर नए एक्टर्स की बात की जाए तो नए एक्टर में ऐसा कौन लगता है आपको कि अब रामायण 2 भी आने वाली है, रामायण भी आने वाली है, आपको क्या लगता है कि मतलब रणबीर कपूर? अभी देखो रणधीर कपूर बहुत स्मार्ट लड़का है, सोच सोच के करता है काम। अब देखो तीन हीरो को हीरोइन के साथ वो होली खेलता है, एंड ही इज़ डूइंग टेरिफिक। वो पिक्चर कौन सी थी जिसमें 3 हीरोइन थी उसकी, तो होली खिलाए, सबके साथ होली खिलाए, तो ऐसी ऐसी पिक्चर भी काम किया है रणधीर। तो ये क्या है, जिसको अच्छा स्क्रिप्ट का नॉलेज है, जो ये नहीं सोचता कि अरे मेरा शर्ट बिगड़ जाएगा, मेरा मुंह पे कलर लगेगा, नहीं, वो कुछ नहीं सोचते। आज सब सोचते हैं, ये सारा दिमाग खराब नहीं करेंगे। थैंक यू, हाईली ऑब्लाइज्ड। एंड INS से शूटिंग बहुत अच्छा शूटिंग हुआ है मेरा, और मैं मेरे जो वक्त है, जो मुझे मानते, जो मेरे लिए काफ़ी कुछ लिखता है मेरे इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू वाले सब ये इंटरव्यू को ज़रूर देखें और ज़रूर मुझे महसूस करें मैं जो बोलना चाहता हूँ।
थैंक यू वेरी मच। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।